متعارف کراتے ہیں اور ہم ان کی زندگی سے انہیں کی زبانی جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خدمت میں آگے بڑھے اور کیا کیا مشکلات ان کو درپیش رہیں. آج بھی ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت پرسنالٹی موجود ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی پاسٹر انیل موجود ہوتے ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور میرے ایمان ہے کہ آج کے ایپیسوڈ کے وسیلہ سے بھی آپ برکت حاصل کریں گے. تو آج میں آپ کے ساتھ جو حوالہ شیئر کرنا چاہتی ہوں, افسیوں اس کا 4 باب اس کی 11ویں آیت سے میرے ساتھ دیکھے گا. اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے, جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنیں, یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں, تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گیری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں. آپ سب کو سمجھ تو آ ہی گئی ہوگی کہ آج ہم کیا بات کرنے والے ہیں. آج کا بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے. آج ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت شخصیت موجود ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پاسٹر انیل خود ہی ان کا تعارف کروائیں. تو جی ویورز, ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. پاسٹر انیل ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائٹ ٹو دا ورلڈ, اور لائٹ ٹو دا ورلڈ پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ ہمارے پاس نئی نئی پرسنالٹیز ہوتے ہیں, نئے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف شعبہ جات سے تعلقات رکھتے ہیں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایلون جان صاحب ہیں جو ہیڈ آف کڈنی ڈائلسس ٹیکنالوجسٹ رہے ہیں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور سر آپ کو آج اس شو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. ویژن آف گاڈ کی ٹیم کو پہلے میں مدعو کرنے کے لیے مبارکباد دوں گا. پاسٹر انیل صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں, اور ان کو اپنے چینل ویژن آف گاڈ میں مجھے دعوت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے لیے فخر ہیں, ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اور تو چیپرز ابھی وقت ہے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, سر کو جھکائیں اور اپنے پروگرام کا آغاز مقاعدہ دعا کے ساتھ کریں. جی آئیں دعا کریں. رب الافواج بہر بڑھ کے خالق اور مالک زندہ آسمانی باپ, دل اور دل کے عطا کے رائے سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے, تیرے پیار اور محبت کے لیے, دیگر تمام تر برکات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب خدا آج جو بھی بات چیت کرے تیری بات مرضی کے مطابق ہو, اور خدا آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے جتنے لوگ دیکھیں وہ برکت پائیں, اور جو کلام کی آیات شروع کی جائے وہ بھی برکت کا باعث ہو. اور اس سارے پروگرام میں بڑی مدد اور معاذ فرما. یہ دعا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. تو جی پر جس طرح سے آج میں نے بڑی خوبصورت ورسز کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, افسیوں 4 باب اس کی 11, 12, 13 اور 14 آیات تک ہم لوگوں نے تلاوت کیا. تو سب سے پہلے پاسٹر انیل آپ کی طرف آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے بعض کو مبشر, بعض کو استاد, اور اس طرح سے اس نے ڈفرینٹ توڑے ہمیں دیے. آج کیا آپ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں تو یہ لکھا ہے, اور ہم لوگ انسان جو ہیں کس طرح سے ان توڑوں کا استعمال کرتے ہیں, اور آیا کیا ہم اپنے لیڈرز کی, اپنے چرواہوں کی, اپنے مبشرز کی رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جی بڑی زبردست جناب آپ نے بات کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری کے 5 اصول ہیں, جس میں مبشر ہے, پاسٹر ہے, اس کو چرواہا کہا جاتا ہے, استاد ہے, اسی طرح نبی ہے, رسول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحیت میں آپ کو 5 اقسام کے جو ٹائٹل ہیں وہ بائبل دیتی ہوئی نظر آتی ہے. سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, خدا ایز اے پاسٹر استعمال کر رہا ہے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہماری مقدس کی تعلیمات, ہماری مقدس کی تعلیم جو ہے اس کے مطابق چلنا اور اپنے آپ کو ڈھالنا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے درمیان ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, سو ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے, اور اسی طرح آپ کے اپنی فیملی کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں. پاسٹر انیل صاحب, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ یہاں دعوت دینے کا. ویژن آف گاڈ کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں, اور آپ کی بلیس فیملی کی بہت سی خدمات ہیں جو کہ ورڈنگ میں نہیں, سوشل لائف میں پریکٹیکلی میں دیکھ چکا ہوں, اور میں اس کا آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میری فیملی
बिलोंग टू सियालकोट से ही हूँ मैं, और गुज़श्ता 3 दहाइयों से हम सियालकोट में रहते हैं, ठीक है ना। हमारी फैमिली में मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अनथक मेहनत से आर्मी को ज्वाइन किया और प्रमोशन लेते लेते वो ऑनररी कैप्टन रिटायर हुए, जिन्होंने अपनी कैप्टन जॉर्ज इकबाल का मैं नाम ले रहा हूँ, जो अपनी कौम उस दौर में जब हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी मतलब कि एजुकेशन प्रोफेशनली कोई इतनी एजुकेशनल ऑर्गेनाइज नहीं थी, उस दौर में उनको तालीम का बहुत शौक़ था। जहाँ तक हो सका उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मिशन स्कूल से हासिल की, आर्मी ज्वाइन किया, वहाँ भी वो पढ़ते रहे, वहाँ भी उन्होंने अपना प्रमोशंस के लिए अपनी स्किल्स को, एजुकेशन को आर्मी में रहते हुए भी ज्वाइन किया और अपनी अनथक मेहनत से वो ऑनररी कैप्टन प्रमोट हुए। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आप कैप्टन की बात कर रहे हैं कि आपके बाबा जो कि आर्मी को जिन्होंने ज्वाइन किया, और हम देखते हैं कि आप में भी बहुत सारे ऐसे असूल पाए जाते हैं आपकी ज़िंदगी पर अगर बात की जाए, क्योंकि आप एज अ डॉक्टर हैं, लेकिन पेशे के लिहाज से आप डॉक्टर तो हैं, लेकिन आपके जो असूल हैं वो आपने अपने बाबा से लिए, सीखे, स्ट्रिक्ट थे, कैसे वो उन्होंने आपको सिखाया कि आपने अच्छी एजुकेशन लेनी है और आपने डॉक्टर बनना है? क्या उनका शौक़ था या क्या आपका शौक़ था? हमारे वालिद साहब हमारे तरह दोस्तों की तरह थे। एजुकेशन की वजह से वो सिर्फ इतना कहते थे कि आज एजुकेशन है तो मैं कैप्टन। मुझे तब कोई घर में पढ़ा लिखा बंदा नहीं था, फैमिली में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। मैं अगर पहुंचा हूं तो मुझे किसी ने बाई फोर्स यहाँ तक नहीं पहुँचाया। ये मेरी अपनी लगन थी कि मैं एजुकेशन हासिल करता रहा, पढ़ता रहा, मेहनत सा लगन था, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। हम 2 बहनें 6 भाई हैं। तो वो भी प्रोफेशनल के लिहाज से कहीं कामयाब हुए, कहाँ क्या करते हैं? मैं थैंक्स ग्रेस ऑफ गॉड कि हम 6 भाई जहाँ जहाँ भी आए ना पाकिस्तान में, वो अपनी मिसाल आप है। वो अपने अपने शहर में अपने नाम से जाने जाते हैं, और हमारे थैंक्स क्रेडिट गोज टू कैप्टन जॉर्ज। यस, क्रेडिट तो उनको जाता है क्योंकि जो आपको सिखाते रहे, जो आपको टीच करते रहे। जी। और आज के पेरेंट्स देखते हैं हम लोग वो इस तरह से अपने बच्चों को टीच नहीं कर रहे होते, क्योंकि एजुकेशन का हमारी कौम में अगर देखा जाए तो वो ट्रेंड ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ कि फुकदान है डॉक्टर कि एजुकेशन के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि आप बड़ा काम भी कर रहे हैं, कि चल के इस पर भी बात करते हैं कि आप सोशल और रिलीजियस पर्पस भी काम कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको एज अ गेस्ट भी, चीफ गेस्ट भी देखा जाता है, जिसमें गॉस्पल प्रोग्राम्स हैं, सोशल प्रोग्राम्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं कि मसीही कम्युनिटी तालीम के किस लेवल पे खड़ी है, और आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनके फ्यूचर के बारे में? एजुकेशन देखें, आप इवेंजिकल फील्ड से हैं जो कि राय रास्त है, आप राय रास्त की फील्ड से हैं। क्रिश्चियनिटी ही ह्यूमैनिटी है, क्रिश्चियनिटी ही ह्यूमैनिटी है, क्रिश्चियनिटी से ही ह्यूमैनिटी निकली। लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट देन क्रिश्चियनिटी। इट्स माई पर्सनल स्टडी, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और जिसमें सेल्फ कमेंट। क्रिश्चियनिटी से मैंने इंसानियत सीखी। क्रिश्चियनिटी मैंने पढ़ी, मैं सेंट स्कूल में पढ़ता रहा, गोरों से पढ़ता रहा। रिलीजियस तालीम मेरी टोटली थ्रू आउट, वो नन्स थी, बिशप्स थे, फॉरेनर थे, जो कि डिवोटेड थे, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के इस पाकिस्तान में, और मुझे ये ज़र्फ़ हासिल है कि मैं उनका शागिर्द हूँ। मैंने रिलीजियस तालीम उनसे सीखी, और उनसे सीखने के बाद जो प्रैक्टिकल मैंने उनका देखा वो मैं साथ साथ ऑब्ज़र्व करता रहा, अडॉप्ट करता रहा, और मैं आज उनके नक्श कदम पे हूँ। ये टोटल क्रेडिट गोज़ टू आवर बिशप्स, आवर एल्डर्स, आवर पास्टर्स, और आई डिज़र्व और आई सर्व सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी ड्यू टू आवर रिलीजियस लीडर्स।
और my backbone. खुदा आप को बरकत दे। और इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम को भी अपने बच्चों पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर साहब उनको देखते हैं कि वो अपने घर में खाते पीते ठीक है। मैंने रिसेंटली मेरा विजिट हुआ लाहौर में और मैंने देखा कि बच्चे की उम्र जो है वो 6 साल हो गई है और अभी तक उसके माँ बाप घर के सारे अखराजात वो कर रहे हैं। और जब ये कहा गया कि आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करवाते, वो कहते हालात बहुत बुरे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से हम कहाँ पर खड़े हैं और आगे, चूँकि आप तो पढ़े लिखे घराने से हैं, तो आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे अगर इसी तरह की सोच लेकर चलते रहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत ही हमारी कम्युनिटी के आपने बुनियादी एक रवश को छेड़ा जो कि हमारी फैमिलियों में तालीम को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, टेक्निकल स्किल पे काम पे डाल दिया जाता है। एजुकेशन फर्स्ट। आप जब तक इस माशरे में आजकल के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी के दौर में जो सिर्फ वाबस्ता ही किससे, एजुकेशन से। जितनी कौमों ने आज तरक्की पाई उसकी बेस क्या थी? एजुकेशन। ज़मीन पे रहते हुए हमें एजुकेशन हासिल करना है। हमें किसी भी हालात में पढ़ना है, एडमिशन लेना है, एजुकेशन लेनी है, और तब ही हम बाइबल को अच्छी तरह समझ पाएंगे। हम अच्छी तालीम लेंगे तो ही बाइबल को अच्छी तरह पिक कर लेंगे, वरना एक प्रचार तक ये बुक रह जाएगी। हमें प्रचार की तरह इसके किरदार को भी समझना है और किरदार को ही हमने बाहर इन्फ्लुएंस करना है। हमें यही पेनिट्रेट करना है अपनी सोसाइटी में। जब हम अच्छी एजुकेशन होगी, हमारी जजमेंट होगी, हमारी असेसमेंट होगी, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, मैं लोगों की बातों को साथ साथ अपना दिल दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा और मैं किसी भी कौम के लिए अच्छा सबब बन सकता हूँ ड्यू टू एजुकेशन। जी बिल्कुल। और जनाब बड़े अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। आज के माँ बाप को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई रास्ता है मसीहत आगे बढ़ पाए, कोई रास्ता है तो वो एजुकेशन से ही होकर गुजरता है। अगर कुरान को डायलिसिस के 3 बड़े सेंटर्स के लिए सियालकोट में इनका एक नाम है, डायलिसिस सेंटर्स इन्होंने कायम किए सियालकोट में। नहीं तो लोग लाहौर जाया करते थे, डॉक्टर साहब मुझे पता है, लाहौर इस्लामाबाद टू मच कॉस्टली प्रोसेस है, टू मच कॉस्टली, और सब कुछ अपना टाइम भी वेस्ट करना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और सारा दिन लग जाना। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब आपकी बड़ी खिदमत है जनाब डॉक्टर साहब, और आप हमारी सही कौम के लिए फख्र है, हम आपका अप्रिशिएट करते हैं। थैंक्स, क्रेडिट गोज टू जीसस क्राइस्ट। खुदा आपके साथ हो। और जनाब ये आपके डॉक्टर साहब से एक और सवाल पूछते चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब चूँकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मैं ये समझता हूँ, डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किस नज़र से देखते हैं कि हमारे कुछ जो है वो सोशल इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को आप किस नज़र से देखते हैं कि जिसमें जबरी मज़हब तब्दीली है, जिसके साथ साथ आपको मैं अक्सर जो है वो सियासी मीटिंग्स में भी देखता हूँ, बड़े बड़े सियासतदानों से आप मिले हैं, आपकी तस्वीर है उनके साथ, और आप क्या देखते हैं कि हम अगर ये मसला है तो इसका हल इलेक्शन है या सिलेक्शन है या अच्छे लीडर्स हैं? किस तरह से हम अपनी मसीहियत को, अपनी कौम को, अपनी बेटियों को, बेटों को एजुकेट कर सकते हैं, और ये किस तरह से हो पाएगा? आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पास्टर साहब आपने। ये बुनियादी की है जो हमारी कौम के लिए अलमिया बनी हुई है इस कौम में। हमारी कौम तनज़्ज़ुली का शिकार दिन ब दिन होती जा रही है और उसमें बेहतरी नहीं आ रही, ग्राफ गिर रहा है। उसमें बड़ी वजह वही आपने बात की जो पास्टर साहब पहले की, एजुकेशन की। ये चीज़ें कहाँ जाके हमें मतलब कि हमें रुसवा कर रही हैं, वही बात एजुकेशन की आगे। हमने वो मेहनत, हमारे दारों ने जो हमें एजुकेशन, हमने मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, ये हमने इस कौम को दिया। अब बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसमें आप देख लें डिफेंस फोर्सेस में, एजुकेशन में, मेडिकल में, ये शोबे में हमारी ग्रिप थी। जुडिशरी में यहाँ आप आइकन्स देखेंगे, ऑल आर क्रिश्चियंस। यस।
एयर फोर्स में देखें, बरी फौज में देखें, जुडिशरी में 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी क्रिश्चियन रहे। वो अलग बात है कि हमें सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिसकी हमारे हीरो पसे पर्दा चले गए और आज हमारी यंग जनरेशन जो है वो उनको जानती भी नहीं है ना। लेकिन ये सारे शोबों की ग्रिप हमारी थी। दूसरी बात ये है कि हमने वही बात, पास्टर साहब आप बार बार बहुत अच्छा वही क्वेश्चन एजुकेशन का, जब तक हमने एजुकेशन ली ये सारे शोबों में हमारी ग्रिप रही। आज का हमारी जनरेशन, न्यू जनरेशन किसी बड़े इरादे में, डिटर्मिनेशन से एजुकेशन हासिल नहीं कर रहा। जस्ट मैंने एजुकेशन हासिल करनी है, पास होना है, बस ठीक है, दैट्स एजुकेटेड कराना है, सिंपल एजुकेटेड, नॉन प्रोफेशनली, नॉन टेक्निकली, पैशनेट बने। आपको एक किसी भी फील्ड का हीरो बनना है, लीडर बनना है, आइकन बनना है, यू हैव टू लीड द नेशन। हमें ये अपने अंदर जज्बा पैदा करना पड़ेगा। हम अगर आज उस लेवल पर जाते, उस लेवल पर थे, तालीम, तरक्की, एजुकेशन को कोई भी रोक नहीं सकता। आपने वहाँ मेहनत ही नहीं की जाने की, लिहाजा हम पीछे से पीछे रह गए। जी बिल्कुल, जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम लोग कामयाब नहीं बिल्कुल होंगे। ठीक है। और कोई भी काम है उसके लिए मेहनत जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो हम फल रिसीव करते हैं। जाहिर सी बात है कि आपने भी मेहनत की अपनी स्टडीज़ के लिए, बहुत सारी मेहनत की होगी और आपने अच्छे मार्क्स लिए, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे निकलते गए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आप अपनी खिदमत के बारे में बताएं। जैसा कि ऑफ द कैमरा आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने मुँह से बताएं। और फिर वो वीडियो क्लिप भी जो आपसे देख रहे थे वो भी जरूर ऑडियंस को भी हम दिखाएंगे कि आप जरूर देखें कि डॉक्टर साहब किस तरह से जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसी तरह जो है वो डायलिसिस सेंटर्स जो इन्होंने कायम किए, जदीद किस्म की मशीनें हैं और सियालकोट मिशन हॉस्पिटल में भी इन्होंने बड़ा प्यारा जो है वो डायलिसिस सेंटर जो है वहाँ पे कायम किया। और दिस क्रेडिट गोज टू यू एल्वन जॉर्ज साहब, खुदा आपको बरकत दे। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो आप खिदमत कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या खिदमत कर रहे हैं? डायलिसिस टेक्नोलॉजी, गुर्दे वाश, एक सिंपल वर्ड हम अपने सोशल लाइफ में सुनते हैं। मेरी वालदा को ये मर्ज़ था, वो शुगर की पेशेंट थी, लेकिन तब कोई डायग्नोज ट्रीटमेंट, उस दौर में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज से 25-27 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब मैं बहुत छोटा था, ठीक है। तो वो हॉस्पिटलों में लेके मेरे वालिद साहब जाते जूते रहते। जो हुआ तब मेरा इतना नॉलेज भी नहीं था, छोटा था मैं। वो हमें जब उनकी डेथ हो गई तो हमें पता चला कि इनके अगर किडनी वाश होते तो ट्रीटमेंट होती। तब दो टेक्नोलॉजी का था, वो मेडिसिन पे रही, ठीक है ना। चले, जो रब ने दिया था उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। वो उनका रिकॉर्ड मेरे वालिद साहब के पास पड़ा हुआ था। उनका रिकॉर्ड जितना था, डायबिटीज हिस्ट्री, ये वो मेडिसिन, वो एक रिकॉर्ड की सूरत में मेरे वालिद साहब ने रखा हुआ था। वो किसी दिन मुझे बताया गया कि गुर्दे शुगर की वजह से उनकी किडनी शट डाउन हो गई थी और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। फिर जो चले, किस्मत में लिखा है, गॉड की तरफ से होना है, उसी ने दिया है, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक, ठीक है। वो मैंने डॉक्टर साहब से, मेरे वालिद साहब ने डिस्कस करते थे कि यहाँ डायलिसिस तब सियालकोट में था नहीं, ठीक है ना। और ना इतनी अवेयरनेस थी, ना मशीनरी थी, कुछ भी नहीं था। होता भी तो किसी को पता ही नहीं था। वो खैर मैंने सोचा कि मैं इस पर कुछ काम करूं, ठीक है ना। मैंने सोचा कि मुझे इसको लेके बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। मैं एजुकेटेड फैमिली से होता हुआ हमें पता नहीं चल पाया। दूसरों का क्या हाल होगा जिनको नहीं पता है, इलिटरेट लोग हैं, सादे लोग हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस है, फाइनेंस नहीं था, वो कहाँ जाके ट्रीटमेंट करवाएंगे। मैंने सोचा इसके लिए मैं काम करूं। वो मैं फिर जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो मैंने सोचा मुझे यही करना है।
میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کروں گا، اس ٹیکنالوجی کو لانچ کروں گا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ میں اس کو ابھی پروموٹ کروں گا، اس کے لیے میں نے کام شروع کیا۔ یہاں سے میں کراچی چلے گیا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہاں میں نے اس کا پروفیشنلی ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن میں دا فرسٹ انسٹیٹیوشن آف ایشیا نیفرولوجی یورولوجی اینڈ ڈائلسس، اس میں ایڈمیشن لیا۔ آئی ایم فرسٹ کلیس ان دیٹ ٹائم 1999 who selected on merit on selected point، ٹھیک، وہ کیا میں نے، چلے کرتے کرتے میرا کورس کمپلیٹ ہوا۔ پروفیشنلی میں نے اتنی محنت کی کہ خدا سے یہ مانگا کہ میریکل ہینڈس دینا مجھے۔ میں نے اس کو ایز اے جاب نہیں ایکسیپٹ کیا کہ میں جاب کروں گا، پیسے کماؤں گا، بس یہی ہے پیسہ کمانا، یہ ہوگا میرا نام ہو جائے گا، نہیں، پیسہ نہیں کمانا، انسانیت کو بچانا۔ میں نے کہا رب مجھے میریکلز ہینڈ ہے، اتنی اسٹڈی دینا کہ جو کیس کوئی نہ کر پائے وہ مجھ سے کروانا، مجھے بس یہ چاہیے۔ وہ خیر ایک وقت چلتے چلتے سلو اینڈ اسٹڈی میں اس نہج پہ پہنچ گیا۔ پھر جب میں نے کافی اس کے پیچھے یہ ہے کہ میں اپنی ڈپلومہ لینے کے بعد بھی میں نے کنگ آف نیفرولوجسٹ، ڈائلسس ٹیکنالوجسٹ، یورولوجسٹ سے بہت قابل لوگوں سے ان کی شاگردی بھی کی، ان کو ہائی پروفائل کیسوں میں اسٹڈی کرتے، ان کو پریکٹیکل کرتے، پھر اپنی اسیسمنٹ کرتے۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ میں بڑے لوگوں کی کاپی کروں گا، میں ان کو سیکھوں گا، کیونکہ مجھے آگے کچھ ریولیوشن لانا ہے اس کام میں، ناٹ فار منی، کسی انسانیت کی جان بچانے کے لیے۔ وہ چلتے چلتے میں آ گیا اپنے شہر سیالکوٹ میں، تب یہاں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ مجھے ایک فون آیا کسی پارٹی کا اسلام آباد سے کہ ہم آپ کے شہر میں ڈائلسس یونٹ لگانا چاہتے ہیں، آپ سیالکوٹ کے ہیں۔ ہمیں وہاں سے پتہ چلا، میں جی میں ادھر سے۔ انہوں نے انویسٹمنٹ کی، 1 سے 2 مشین لانچ کی، جو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ دیکھے کہ میں نے 1 مین مارکیٹنگ کی خود، اس کام کا کسی کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہوتی ہے۔ جو پرانے ڈاکٹرز پڑھے تھے، معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، ان کو یہ نہیں پتہ تھا۔ پرانے MBBS کو جو 60-70 کے پڑھے ہیں ان کو نام سنا ہوگا، نالج نہیں تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کمیونٹی کو اتنا ان کا نالج نہیں ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا۔ پھر مجھے گراؤنڈ ریالٹی پہ جانا پڑا۔ میں نے جتنے سیالکوٹ کے ڈاکٹر سے CMH میں ادھر جتنے بھی تھے آئیکنس، ان کے پاس گیا، مطلب کہ میں نے گراس روٹ پہ جا کے خود اس کی پبلسٹی کی، کوئی 1 by 1 اپوائنٹمنٹ لیتا، یہ کسی ڈاکٹرز کے جتنے بھی ہیں ان کو کوئی میٹنگ کانفرنس میں مجھے بلا لیتے، پھر میں ان کو بتاتا یہ ہے۔ مجھے سمجھانے پہ بھی بڑی دقت آئی، مصیبت آئی، تھریٹیکل سمجھانا تو مشکل تھا، پریکٹیکل کر کے مجھے بلانا پڑتا، یہ پریکٹیکل ہے، ایسے ہے، ان کو بلانا بھی پڑا۔ خیر اس میں مجھے سالوں پیدل بھی چڑھنا پڑا ڈاکٹروں کے پاس، ڈور ٹو ڈور، ان کے کلینکس پہ، ان کے ہاسپٹل پہ۔ ایجوکیٹ موومنٹ میں نے خود کی، اس کی اویئرنیس میں نے خود دی، پھر لوگوں کو لا کے دکھانا بھی کہ آپ آئیں، یہ دیکھیں اس وجہ سے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، یہ بچتے ہیں۔ لوگوں کو میڈیکل کے لوگوں کو اس کی اویئرنیس بھی ہوئی، پریکٹیکل کا پتہ بھی چلا۔ سب آپ سے کویشچن کر لیتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کسی فیملی نے آپ کو کال کر کے کہا کہ ہم لوگ یہاں پہ مشینری دینا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے وہ کون سا ایسا ادارہ تھا، کون سا ایسا ہاسپٹل تھا جہاں پہ ان لوگوں نے انویسٹ کیا یا اس مشین کو؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، تو اس کے لیے تو پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ انیشلس میں یہ ہوا کہ جب میں آیا تو ایک چیریٹی ادارہ ہے یہاں جس کی بہت سی انسانیت کے لیے خدمات ہیں، وہ ایک جنرل ہاسپٹل کو بھی رن کر رہے ہیں، ایک پیڈس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں، اس کی ذیلی ادارے ایجوکیشن کو بھی کام کر رہی ہیں، اس کی بہت سی خدمات ہیں۔ انہوں نے جب میں ادھر آلریڈی دوسرے ایک پارٹنر سے کام چل رہا تھا، انہوں نے آہستہ آہستہ یہی کام کسی نجی ہاسپٹل والوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ہم یہی کام زیادہ مطلب وسیع ترین مریضوں تاکہ پھیلا کے مشینری کو بڑھا کے ایک بڑا ڈپارٹمنٹ آپ کو بنا دیں تو کیا آپ کو کتنے بندوں کی ضرورت ہوگی؟
आप अकेले हैंडल पाओगे तो हम इन्वेस्टमेंट सर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें मशीनरी लॉन्च कर सकते हैं हम, लेकिन रन आपने करना है। आपके पास इस काम को समझने करने वाले कितने लोग हैं, ना होने के मुतरादिफ थे, ना होने के मुतरादिफ। फिर भी पेशेंट देखते थे हम नीचे बहुत हैं, लाहौर इस्लामाबाद जाना। डॉक्टर साहब आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और यकीनन देखने वालों को भी बरकत हासिल हो रही होगी और पास्टर नील हम दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये देखें ये इनकी ज़िंदगी की गवाही है, एक्सपीरियंस भी है और गवाही भी है कि किस तरह से उन्होंने ठान लिया कि मैं ये करूँगा। और कब उन्होंने ठाना, जब उन्होंने देखा कि मेरी माँ किस तरह से किस बीमारी में चल रही और काल के हकीकी सजा मिली, और उन्होंने ये भी सोचा कि अब मैं क्यों ना दूसरी माँ को बचाऊँ। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, बड़ा अच्छा आपने वो ठान लिया अपने दिल में, जब हम लोग ठहरा लेते हैं और फिर हम उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। किस तरह आपने ये तो ठान लिया कि मैं अपनी माँ को तो खो चुका हूँ लेकिन मैं दूसरी माँ को बचाऊंगा, और आज आप बताते चले कि कितने हॉस्पिटल्स में ये मशीनरी है और ताकि देखने वालों जी ताकि देखने वालों के लिए आसानी हो सके। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2000 में सियालकोट मेडिकल कॉलेज यहाँ एक इंसानियत के नाम पे बहुत बड़ा अदारा है जिनकी ये बहुत बड़ी खिदमात हैं कि उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डायलिसिस मशीनरी यहाँ लॉन्च की, जिसमें हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनकी खिदमात को भी सलाम पेश करता हूँ, जिनकी वसातत से सब कुछ हुआ। उन्होंने इंसानियत की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हॉस्पिटल का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशंस का हमारा भी साथ दिया। मैं उनकी इन खिदमात को सलूट पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। उधर फिर उन्होंने एक बहुत मेगा यूनिट पे काम किया कि ये तो टू मच कॉस्टली काम है, जो कोई गरीब आदमी के बस की बात भी नहीं। 10-15 मशीनें लॉन्च की, जिसमें हर कैटेगरी की मशीनरी प्रोफेशनली, जो मैंने कहा उनको कि ऐसी होनी चाहिए कि एक पेशेंट को दूसरा मर्ज ना लग जाए, हाइजेनिकली भी उनको अलग अलग करके प्रोफेशनली हमने सिस्टम सही लॉन्च किया कि जिसमें एक बराबर भी मुनाफकत नहीं थी। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ कि उस सिस्टम को लॉन्च करने में ज्यूरी का बहुत बड़ा हाथ है, बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड ओपन, ये सारी बातें पहले हिडन थी, आज पास्टर साहब की वसादत से मुझे खुल के बोलने का मौका मिल रहा है कि आज उस जितना भी वो एक प्रोजेक्ट था, मैं बड़ा ओपन हार्ट, बड़ा रिलैक्स महसूस करके ये कह रहा हूँ कि उसमें इंसानियत के लिए 0% में मुनाफकत नहीं थी, जो कि 100% ह्यूमैनिटी बेस पे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मेडिसन सबको प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज किया, जिसमें मुझे फ़ख्र है कि उसमें इंसानियत को हमने 100% फेवर दी कि ये काम इंसानियत के लिए हम 100% ठीक करेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। और आपने डायलिसिस सेंटर्स जो हैं वो 3 सेंटर्स जो है वो मुतारिफ करवाए हैं सियालकोट में। और अगरचे जैसे जनाब बात कर रही थी कि जबकि आपकी माँ तो मसीह में सो चुकी, लेकिन आपने ये सोचा कि कोई और माँ को मैं ये चाहता हूँ कि इस बीमारी से ना मरे, बल्कि जितनी भी उनकी लाइफ है वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी गुजारें और अपने ग्राम में रहें। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। और नेक्स्ट वीक हम उम्मीद रखते हैं खुदा से कि चूँकि आपका प्रोफेशन ही इतना ज़बरदस्त है, इंसानियत के लिए आप काम करते चले तो मैं समझती हूँ कि 2 घंटे भी कम है, बड़े ज़बरदस्त आप बंदे हैं, हिम्मत भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। विजन ऑफ गॉड की सारी टीम को मेरा शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच। अभी कुछ लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई भी अगर आप मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं अपनी कौम को यही पैगाम दूंगा विजन ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से, हर सूरत में तालीम को, एजुकेशन को हासिल करें। किसी की लेग पुलिंग करने से बेहतर है आप सीढ़ी का किरदार अदा करें। किसी को बनाने में बहुत इज़्ज़त मिलती है, किसी को गिराने में बहुत ज़िल्लत मिलती है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। जी डॉक्टर साहब, मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ और हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और हमारी दुआ है कि आप यूं ही खुदावंद में भी बढ़ते चले जाएं
اور آپ جو بھی آپ خدمت کر رہے ہیں انسانیت کو لیتے ہوئے خداوند آپ کے ہاتھوں میں شفا بخشے تاکہ آپ جس پیشنٹ کو چھوئیں تاکہ وہ بھی شفا پائے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. God bless you, Sunnah. خداوند آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ بھی ہو. تو جی بس میرا ایمان ہے کہ آج کے ایپیسوڈ کی وسیلہ سے آپ نے برکت کو حاصل کیا ہوگا. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اپنے دل میں ٹھان لیا اور انہوں نے انتھک محنت کی, اچھی ایجوکیشن حاصل کی اور کرتے کرتے آج وہ دیکھیں کس مقام پہ پہنچ گئے ہیں. آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.